size plus big proteins या large proteins जिनका साइज जो है बहुत बड़ा होता है, they are not able to pass the small pores, छोटे छोटे holes होते हैं, they are not able to pass those pores. Please re-explain. I have just now started with lymphatic system. Lymphatic system में अभी हमने शुरू किया lymph. Lymph फॉर्म होगा blood से. जब blood vessels में जाता है, you know there are 3 types of blood vessels: arteries, veins and capillaries. तो जब blood flow करता है इनमें से, artery में से, तो some amount of blood moves out of this blood vessels. तो जो निकलता है उसमें से वो क्या है, लिखा है इसमें ऊपर, water and small proteins. Yes. और जो नहीं निकल पाता वो क्या है, RBCs and large proteins. तो ये जो निकला है water plus small proteins plus WBCs is known as lymph. तो lymph का कलर भी देख सकते हो आप. I made it yellow, so it is yellow in color or it is white, or maybe it is called as colorless fluid because it does not have RBCs. So write down about lymphatic system, heading लिखो. Lymphatic system के बारे में लिखो सभी. It is a system lymphatic system में लिखो. It is a system consisting of lymph vessels. It is a system consisting of lymph vessels. लिखा सभी ने? Lymph vessels, lymph nodes या lymph glands. It consists of lymph vessels, lymph glands, and lymph. Which flows from tissues to circulatory system. Which flows from tissues to circulating system. A circulatory system. What is the lymph glands? हाँ बच्चे, अभी मैंने समझाती हूँ आपको, अभी पूरा एक क्लियर करती हूँ. पहले आप सिर्फ हेड ये लिख लो, lymphatic system के बारे में. अभी हमने सिर्फ lymph के बारे में स्टडी किया है. So it consists of lymphatic vessels, lymph glands, and lymph, which moves from tissues to body blood circulatory system. And which moves or flows? एक ही बात, दोनों में से कुछ भी लिख लो. Which moves or flows. क्लास ऑफ हेडिंग लिख रहे हो, lymphatic system. Lymphatic system में लिखो. Lymphatic system जिसने अभी ज्वाइन इन किया लिखो. Lymphatic system में लिख रहे हो, it is a system consisting of. Ma'am, wait. Okay. Write down about lymphatic system. It is a system consisting of Yes, ma'am. लिखा हुआ है स्क्रीन पे. It is a system consisting of lymph vessels, lymph glands, and lymph flowing from tissues to blood circulatory system. Okay, ma'am.
अच्छा लिख लिया सभी ने? It consists of, yes, it consists of Yes, lymph, okay, lymph vessels, lymph glands, and lymph which flows from body tissues to blood circulatory system. अब आप लोगों ने लिखा था what is a lymph. अब हेडिंग लिखो आप lymph. लिम्फ के बारे में आपको बता दिया है कि ब्लड वेसल्स में जब ब्लड फ्लो करता है तो ब्लड फ्लो करने के बाद जो उस ब्लड में से जो निकल जाता है ब्लड वेसल्स में से, दैट इज कॉल्ड एज लिम्फ. लिम्फ हैज वाटर, प्रोटीन्स एंड डब्ल्यूबीसीज. तो लिम्फ के बारे में लिखो. लिम्फ का दूसरा नाम है टिश्यू फ्लूइड. राइट ऑन. लिम्फ इज आल्सो नोन एज टिश्यू फ्लूइड. लिखो लिम्फ और टिश्यू फ्लूइड इज कलरलेस. Another name of lymph is tissue fluid. Ma'am, Yes, Chahat. ma'am, I got disconnected. The last time I heard was the definition of lymphatic system. What happened after that? हाँ बच्चे, I have just now started with lymph. Lymph, write down lymph. Lymph आपको ये समझ आ गया था बेटा, मैंने बताया था. Lymph is formed from blood. Lymph का आप दूसरा नाम लिखो, हेडिंग लिखो चाहत, lymph और tissue fluid. Lymph or tissue fluid. Yes, Rishabh, welcome to the class, Rishabh. Beta, we are doing this topic, circulatory system. Rishabh, am I audible to you? Yes, ma'am. Okay, yeah, you're from which school, Rishabh? Ma'am, Ryan International. Okay, Ryan. We have another student from Ryan. Yes, Kaya, no? Yes. Rishabh, we have just now started with this new topic from life processes. I'll repeat everything, don't worry. जितना भी टॉपिक हमारे हो चुके हैं, I'll do revision, तो don't worry about the previous lectures. I'll repeat it for you. अभी सिर्फ मैंने आपको ये बताया है कि blood जब move करता है, just let me know if till here you are clear. When blood moves from blood vessels, तो blood जो side पे निकलता है, जो blood vessels को cross करता है, that is called as lymph. Lymph का color भी I have made yellow, but it is colorless because इसके अंदर RBCs नहीं होता, proteins नहीं होते, बाकी सब कुछ होता है वाटर, स्मॉल प्रोटीन्स और डब्ल्यूबीसीज. और ये ब्लड वेसल्स में से जाता है. बहुत ध्यान से आप लोग पहले समझोगे लिम्फ के बारे में. देयर इज अ कंफ्यूजन अबाउट लिम्फ. तो जब आर्टरीज में ब्लड जाता है, ऑब्वियसली यू नो आर्टरीज हैज आरबीसीज, ब्लड, इट्स अ प्योर ब्लड. इट इज रेड इन कलर. इट हैज प्रोटीन्स आल्सो. Oxygenated blood. Yes, oxygenated blood. It has proteins also. It has big proteins. It has small proteins. तो जब ये ब्लड बहुत तेजी से जाता है तो ये कुछ इसमें से ब्लड में से कुछ चीजें जो बाहर निकल जाती है ब्लड वेसल्स में से. ब्लड वेसल जो रेड कलर की होती है वो होती है आर्टरी. जो ब्लू कलर की होगी वो क्या होती है? एनीवन? Vein. वेन. Vein. वेन. तो वेन हैज डीऑक्सीनेटेड ब्लड, मतलब इसके अंदर CO2 ज्यादा होती है, आर्टरी में ऑक्सीजन ज्यादा होती है. कैन एनीवन टेल मी व्हाई इट इज रेड इन कलर? If it has oxygen, why it is red? Ma'am, because the blood Ma'am, contains because hemoglobin. Which Hemo- means Yes. hemoglobin, ma'am. Yes, yes, very good, very good. अब देखो Iron. जिसको तो अगर ये याद है आप लोगों को, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि ब्लड हैज आरबीसीज. आरबीसीज के अंदर होता है HB जिसको बोलते हैं हीमोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन हैज आयरन and protein. and protein. Protein. Globin, hemoglobin. हीम इज आयरन, ग्लोबिन इज प्रोटीन. हीमोग्लोबिन इसको बोलते हैं. आयरन जब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है इट टर्न्स इनटू रेडिश ब्राउन, तो रेड हो जाता है. इसीलिए अब रेड ब्लड इज रेड इन कलर व्हेन इट इज ऑक्सीजनेटेड, एंड व्हेन इट कंबाइंस विद CO2 इट फॉर्म्स ब्लू कलर. तो इसीलिए कई बार हमारा ब्लड ब्लू होता है व्हेन इट इज विद कार्बन डाइऑक्साइड. व्हेन इट इज विद ऑक्सीजन इट इज रेड इन कलर. ओके. अब जब ये ऑक्सीजन जा रहा है हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो इसमें से जो निकला है वो उसको बोला जाता है लिम्फ. लिम्फ में आप लोगों को मैंने लास्ट अभी शीट पे बताया कि लिम्फ हैज वाटर, प्रोटीन्स एंड डब्ल्यूबीसीज. मैंने डब्ल्यूबीसीज को बिल्कुल अलग रखा बिकॉज मेजर फंक्शन ऑफ लिम्फ इज टू प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शन. आप लोग देखते हो आपकी बॉडी में पस फॉर्मेशन होती है,
कहीं पे भी पस फॉर्मेशन होती है बिकॉज एक्यूमुलेशन, दैट पोर्शन हैज मेजर एक्यूमुलेशन ऑफ लिम्फ इन इट. हमारे फेस पे पिंपल्स होते हैं, कहीं चोट लगती है, वूंड पे पस फॉर्मेशन होती है. इट इज ऑल बिकॉज WBCs वहां पे ज्यादा है. इट इज वाइट इन कलर एंड इट इज किलिंग बैक्टीरिया. जो आपके इन्फेक्शन आया है उसको किल कर रहे हैं. तो लिम्फ जो है, अब ब्लड वेसल्स में से निकल के जाता कहाँ है? जो मैंने लिम्फ को बाहर निकाला है, तो ये जाता कहाँ है? ये जाता है टिश्यूज में या ऑर्गन में. और ये जो Ma'am, टिश्यू है, skin also. नॉट अपर स्किन, यस बिलो स्किन, यस. Okay. है ना? तो कई बार आपने देखा होगा हल्की सी चोट लगती है, कई बार पानी निकलना शुरू हो जाता है, पस फॉर्मेशन या पस नहीं आती तो पानी पानी सा लगता है. इंस्टेड ऑफ ब्लड इट इज लाइक वाटरी सब्सटेंस oozes आउट ऑफ योर स्किन. दैट वाटरी सब्सटेंस इज लिम्फ. तो अब जब ये टिश्यू के अंदर गिरा तो ये बिल्कुल टिश्यूज को येलो कर देता है. दैट इज व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज टिश्यू फ्लूइड. अब लिम्फ Ma'am, का, but the color of lymph is colorless. So हाँ, how does it colorless. become yellow? कलरलेस भी बोल सकते हो. WBC ज्यादा होते हैं तो इट अपीयर टू बी येलो इन कलर. ठीक है. Okay. हाँ, वैसे ही जनरली दे आर वाइटिश होते हैं. ट्रांसपेरेंट भी बोल सकते हो. टिश्यू फ्लूइड, वाइट इज कॉल्ड एज टिश्यू फ्लूइड बिकॉज इट इज प्रेजेंट इन द टिश्यूज. अब इसने RBC से, यहाँ पे थी ऑक्सीजन तो इसने टिश्यूज में दे दी ऑक्सीजन. तो टिश्यू फ्लूइड का मेन फंक्शन क्या हुआ? टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन. दूसरा फंक्शन क्या हुआ? ब्लड में हमारा होता है फूड. सबको पता है ब्लड हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन. अगर आपको याद हो, सभी को मैंने बताया था. ऋषभ, मेरे बहुत ध्यान से सुनना. ब्लड हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टिंग सब्सटेंसेस फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन टू अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी. आप जो खाना खाते हो, आपके पेट से आपके सिर तक जाना है, वो जाता है वाया ब्लड. तो दिस ब्लड हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड. लेकिन ब्लड के बाद कौन लेके जाता है? लिम्फ. ओके. तो लिम्फ का मेन फंक्शन क्या हो गया? डाइजेस्टेड फूड एंड हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन. और WBCs हैं तो क्या हेल्प कर रहे हैं? बॉडी की प्रोटेक्शन बाय किलिंग ऑफ जर्म्स, बाय किलिंग जर्म्स. कितने बच्चों को लिम्फ के बारे में समझ आ चुका है? प्लीज रेज योर हैंड. बी क्विक. ओके आदिल, ओके वर्जो, जानवी, सौम्या, Ma'am, रोहन, please काया. repeat what you said about Ma'am, food. can you Yes, sir. explain the functions? Functions. Okay. Ma'am, Okay. Yes. Okay. Yes. I'll do that. बच्चे functions में simple मैंने आपकी look on your screen. I have written them also. They help in carrying digested food. They help in killing germs, thus provide protection, and they help in transporting oxygen from our body. So these are the functions of lymph. Please start with the Okay, writing ma'am. part. हाँ, Yes, लिखो बेटे. ma'am. Yes. But transporting oxygen must only be in arteries, no? हाँ, arteries थी. लेकिन बच्चे अब वो जो RBC से, because you know there is a process called as diffusion. Diffusion में अगर आप लोगों को याद हो, हमने एक क्लास में भी डिस्कस किया था. Diffusion is movement of molecules from high concentration to local as it is loaded with O2. So oxygen will move from inner side to outer side. No, ma'am. I'm asking that veins don't have oxygenated blood, so carrying oxygen only happens in arteries. Yes. तो yes. हाँ. Veins they carry CO2. The veins they carry CO2. Okay. They carry CO2, deoxygenated blood from organs to heart. Heart में लेके आती हैं वो. तो अब आप ये लिखो. आपने लिखना है बच्चे lymphatic system लिखा, आपने lymph लिख लिया है. lymph और tissue fluid. Write down about lymph. Write down the heading. Lymph or tissue fluid is a colorless fluid. Lymph or tissue fluid is a colorless fluid lymph or tissue fluid is a colorless fluid which fight against infection.
Lymph is a colorless fluid which fight against infection. Yes, Shreya, can you tell me why they fight against infection? ऐसा क्या है इनके अंदर जो ये प्रोटेक्ट करते हैं हमारी बॉडी को? WBC, Very good. Tell me the full form of WBCs. white blood cells. White blood cells? No. White blood? Corpuscles. Yes, corpus cells. अच्छा मैंने आपको बोला yes. नहीं, corpus cells. Corpus cells. They are WBCs or corpus cells. They help in providing in protection. तो इसमें अब लिखो lymph or tissue fluid is a colorless which fight against infection. It flows only in one direction. It flows only in one Sorry. direction. It flows only in one direction from tissue to heart. Ma'am, can you repeat after colorless fluid? Colorless fluid which fight against infection. It flows only in one direction. That is from tissues to heart. Ma'am, your voice is cracking. Which is it with everyone? No, ma'am. Okay. No, ma'am. Okay. Bache, please just wait. Is it fine now, Chahat? Chahat, Yes, am I ma'am. on? हाँ, बच्चे Yes, लिखो फिर. ma'am. हाँ, लिखो. It flows only in one direction from that is from tissues to heart. अब lymph vessels हैं. Lymph vessels जो है ना टूट के बना देती हैं. Yes, क्या बनाएंगी ये? Branches क्या बोलते हैं? Capillaries. Very good. Capillary. Very good. Very good. ऋषभ आपके लिए न्यू टर्म्स हैं. एक होती है आर्टरी. 3 तरह की ब्लड वेसल्स होती हैं. एक आर्टरी, एक होती है वेन और एक इनके बीच में आती है. जब ये ब्रांचेस फॉर्म करते हैं उनको बोलते हैं कैपिलरीज. तो आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज Ma'am, capillaries are द ब्रांचेस. तो लिम्फ में भी जो लिम्फ वेसल्स थी, lymph flows in vessels and lymph vessels they divide themselves into branches ताकि वो tissues को cover कर सके. And those branches are called as capillaries. Artery, हाँ, artery आप देख सकते हो स्क्रीन पे. I've made them red in color because उसमें pure blood होता है. Vein I've made it in blue color because it has impure blood. और बीच में आती हैं capillaries where there is exchange of gases. तो जहां पे भी ब्रांचेस आए वहां कैपिलरीज. अब नेक्स्ट हेडिंग लिखोगे आप लिम्फेटिक वेसल. लिम्फेटिक वेसल. The capillaries join to form lymphatic vessels. The capillaries The capillaries join to form lymphatic vessels. The capillaries unite to form lymphatic vessels. अब ये जो छोटी छोटी कैपिलरीज थी ना, कैपिलरीज ऐसे भी बनाई जा सकती हैं. ब्रांचेस जैसे आप बात करते हो. Excuse me, ma'am. Yes. Ma'am, you said lymph is produced when blood is flowing fast. So only during
when blood pressure is high? No, 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 always. Blood is always flowing into arteries, तो artery से निकलता रहता है. Excess of the water, excess of salts, excess of proteins. मैम जब निकलेगा नहीं तो क्या होगा फिर? लिम्फ एक्यूमुलेशन हो जाती है, काफी डिजीजेस हो जाएंगे. तो देखो ये थी It लिम्फ is वेसल. compulsory. हाँ हाँ, लिम्फ फॉर्मेशन इज कंपल्सरी. देखो लिम्फ वेसल है. लिम्फ वेसल ब्रांचेस में टूटी कैपिलरीज. कैपिलरीज का फंक्शन आपको बता दिया है, टू प्रोवाइड मटेरियल टू द टिश्यूज. कैपिलरीज. और फिर ये यूनाइट करके क्या बनाती हैं? वेसल्स. वेसल से ही बनी थी, वेसल्स ही बन गई दोबारा से. अब कई बार क्या होता है, बहुत सारी वेसल्स एक जगह आके ज्वाइंट होंगी और वहां पे एक गुच्छा सा बन जाता है. दैट रीजन इज कॉल्ड एज नोड. अब नोड क्या हो गया? बहुत सारी वेसल्स. इट्स अ यूनियन ऑफ मेनी वेसल्स, ग्रुपिंग ऑफ वेसल्स. अब ये गुच्छा कहाँ बना होगा? बहुत सारी वेसल्स कहाँ इकट्ठी हुई होंगी लिम्फ की? ऐसे ऑर्गन में जहां से एक्सक्रीशन होनी हो, जैसे किडनी के ऊपर. दैट एक्ट एज अ फिल्टर, क्योंकि किडनी में सारा कुछ जो एक्सक्रीट आउट हुआ है वो निकलेगा. ये टॉपिक बिल्कुल डिफरेंट है, ये थोड़ा सा टफ भी है, आई कैन अंडरस्टैंड. लेकिन जहां नहीं समझ आएगी बात वो पूछ लेना, क्योंकि जो पिछला हमने टॉपिक किया था दैट वाज कंपैरेटिवली वेरी इजी. तो बस सिर्फ समझ लो कि लिम्फ लिम्फ के बाद आपने लिखी लिम्फेटिक वेसल्स. अब आप लिखोगे लिम्फ नोड और लिम्फ ग्लैंड्स. लिम्फ नोड और लिम्फ ग्लैंड्स. They are in one word, ma'am. हाँ, एक ही बात है, लिम्फ नोड्स और लिम्फ ग्लैंड्स. Ma'am, the definition of lymphatic vessel is the capillaries joined to form lymphatic vessels. दोबारा बोलो. The capillaries joined to form lymphatic vessels. The definition. yes. Okay. ठीक है. अब लिम्फ नोड या लिम्फ ग्लैंड के लिए लिख रहे हो? Yes, ma'am. लिम्फ, इसके लिए लिखो इट इज फॉर्म्ड बाय ग्रुपिंग ऑफ वेसल्स, लिम्फ वेसल्स. It is formed by grouping of vessels in different regions. Grouping of vessels in different regions. कहते हैं lymph ने क्या क्या काम किए? Yes, Soumya, can you tell me the function of lymph? Any function? Ma'am, transporting oxygen, food, and providing protection. Very good. You have told all the functions. तो सबसे पहला लिखो, it protects the body. WBCs है ना, तो protection है. It protects the body by killing germs. It protects the body by killing germs. It carries digested food and absorbed fat. Carries digested food. And absorbed fat. तो ये एक छोटा सा टॉपिक, this topic is already given in your NCERT in a short paragraph, so I have tried to elaborate it.
सो अब इसमें देखो, अब आपको ये समझ आ गया है कि lymph flows in lymph vessels and many lymph vessels they join to form lymph gland. हमारी पूरी बॉडी में कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ lymph node ना हो. ब्लड से पहले lymph ooze out होता है, पानी जैसा फ्लूइड आता है, फिर उसके बाद ब्लड आएगा, because it has more of WBCs. Yes. Ma'am, you forgot to mention one more function, transports O2. हाँ वो बच्चे एक्चुअली में दैट इज द फंक्शन ऑफ आरबीसीज ओनली. सो अगर आप इसके प्रॉपर फंक्शंस पढ़ो तो इट हेल्प्स इन प्रोटेक्शन, प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन एंड इट कैरीज डाइजेस्टेड एंड एब्सॉर्ब. दीज आर द टू मेन फंक्शंस. ठीक है. Okay, अगर हम ma'am. ऑक्सीजन लिखेंगे दैट विल बी कंट्रोवर्शियल बिकॉज यू नो कि जो आपके ऑक्सीजन है वो कौन कैरी कर रहा था? हीमोग्लोबिन. तभी उसका कलर क्या हुआ था? रेड. यस. Yes, ma'am. और अब लिम्फ की बात करो तो लिम्फ की एक्यूमुलेशन कई बार हो जाती है. जब आप लोगों ने सुना है एलिफेंटियासिस, देयर इज अ डिजीज नेमिंग एलिफेंटियासिस. किसने सुना होगा इसके बारे में? एलिफेंटियासिस. ओके, एलिफेंटियासिस सुना हुआ है सबने? Yes, ma'am. ओके. एलिफेंटियासिस, हाँ बच्चे, एक ना डिजीज होती है एलिफेंटियासिस जिसमें एलिफेंट या पिलर लाइक पैर हो जाते हैं, बहुत बड़े बड़े. ओके, ये तो सुना है. हाँ ये सुना है ना. तो इसमें होता क्या है? देयर इज एक्यूमुलेशन ऑफ लिम्फ. लिम्फ हमारी पूरी बॉडी में पानी की तरह है, बट वो अगर एक्यूमुलेट हो जाए तो इट बिकम्स हार्ड जेल लाइक सब्सटेंस. समझ रहे हो? जेल, जेल सबको पता है. यस तो मैम. वैसा ही एक्यूमुलेशन हो जाता है. तो एक्यूमुलेशन ऑफ लिम्फ कॉजेस सीवियर प्रॉब्लम्स. पैर नहीं हिला पाएंगे, बहुत मोटे मोटे पैर हो जाते हैं एलिफेंटियासिस, एंड इट इंक्रीजेस अप टू द जेनाइटल ऑर्गन्स. कई मेल्स के केस में तो ऊपर तक आ जाता है ये पिलर लाइक फीट और बॉडी के अपर पोर्शन तक. इट इज अ डिस्टर्बिंग थिंग. तो एलिफेंटियासिस इज एक्यूमुलेशन ऑफ लिम्फ. ऐसे ही अगर आपने सुना है कि आयोडीन अगर आप अपनी डाइट में नहीं लेते हो तो कौन सी डिजीज होती है? एनीवन? Deficiency of goiter. 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 Who was the first one who gave me the answer? Rohan. Very good, Rohan. Goiter. Goiter को हिंदी में बोलते हैं घींगा. तो वो घींगा जो होता है ये goiter होता है. It's the enlargement of the neck region. अब पता है सभी को? तो neck region, swollen neck, बहुत गर्दन बड़ी हो जाती है because of deficiency of iodine. Iodine हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा जरूरी है थायरॉक्सिन बनाने के लिए. तो अगर आपने आयोडाइज सॉल्ट नहीं लिया या आपकी बॉडी में या आपके खाने में आयोडीन की कमी है, तब भी आपकी बॉडी में एक्यूमुलेशन होनी शुरू हो जाती है लिम्फ की. दैट कॉजेज एनलार्जमेंट ऑफ योर नेक रीजन. तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि लिम्फ के बारे में. दिस लिम्फ इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ आई एम कमिंग टू वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. अगेन दिस इज गिवन इन योर येलो इनबॉक्स. ब्लड प्रेशर. ऋषभ, आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर टू यू. अच्छा, हम सारे टॉपिक्स नए करेंगे. नो टॉपिक इज रिलेटेड टू द अदर वन, सो डोंट वरी एट ऑल. जो पिछला है वो सारा आई विल कवर. ठीक है. सो नो नीड टू वरी एट ऑल. जो आप पढ़ रहे हो बस उतना समझ आना चाहिए. ऋषभ, इज दिस क्लियर? यस मैम. ओके ऋषभ. मैम लिम्फ थोड़ा यस. मैम थोड़ा लिम्फ समझ आया. लिम्फ नहीं क्लियर हुआ बेटे? लिम्फ बेटे मैंने आपको Yes. बताया, लिम्फ इज अ टिश्यू फ्लूइड व्हिच इज फॉर्म फ्रॉम ब्लड. लिम्फ का कलर क्या था? कलरलेस. इट हैज मोर ऑफ WBCs, प्लाज्मा. प्लाज्मा पता है आप लोगों को वाटर बोला गया था. एंड प्रोटीन्स. It provides protection and helps in transport of dissolved food and fat. lymph बनता किससे है? ब्लड से बनता है. और इसके फंक्शंस बता दिए. इसको टिश्यू फ्लूइड क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट फ्लोज इन द टिश्यूज. lymph निकलता किससे? लिम्फेटिक वेसल. lymph जो है लिम्फेटिक वेसल्स में से घूमता है और बहुत सारी लिम्फेटिक वेसल इकट्ठे क्या बना देते हैं? lymph glands. ओके. यस. ठीक है. तो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है ब्लड प्रेशर. तो ब्लड प्रेशर हम पढ़ रहे थे. यस. Ma'am, veins do not produce lymph. ब्लड नहीं बच्चे, ब्लड से वेन्स का कोई काम ही नहीं है इसके अंदर ना.
ब्लड से फॉर्म हुआ ना, वो प्योर ब्लड से, क्योंकि फूड Okay. डाइजेस्टेड फूड, हाँ डाइजेस्टेड फूड ब्लड लेके जाएगा ना। Ma'am, blood pressure is, I guess, the speed of transportation of blood or flowing of blood. हाँ हम इट इज वेन्स पे यस। सिर्फ लिम्फ नोड फॉर्म हो रहे हैं सिर्फ। नहीं वेन्स का कुछ है ही नहीं बेटे, मैंने वेन्स उसमें नहीं बताया आपको, मैंने बताया आपको वेसल्स इकट्ठी होके, वो लिम्फेटिक सिस्टम इज सेपरेट थिंग, इट हैज ओनली आर्टरीज, आर्टरीज भी नहीं बोलेंगे इसमें, बोलेंगे लिम्फेटिक वेसल्स, इट हैज ओनली लिम्फेटिक वेसल्स। ओके ओके, तो अब आप लिख रहे हो ब्लड प्रेशर इज द फोर्स दैट ब्लड एक्सर्ट्स ऑन द वॉल ऑफ वेसल, ब्लड कितनी तेजी से जा रहा है ब्लड में, वेसल्स में, and what force it is creating on the walls, that is known as blood pressure. अब इसमें एक इंटरेस्टिंग बात सुनते हैं, कहते हैं डायबिटिक पेशेंट, सिर्फ आपने सुनना है मेरी बात, डायबिटिक पेशेंट जिनके खून में ज्यादा चीनी होगी, आपको पता है अगर शुगर चाशनी बनाते हो, पानी के अंदर चीनी डालते हो तो इट बिकम्स थिक, तो अगर वो थिक ब्लड जाएगा तो वो थोड़ा स्लो जाएगा, एंड इफ इट इज मूविंग इट विल क्रिएट मोर प्रेशर ऑन द वॉल्स। तो जो डायबिटिक पेशेंट हैं उनका बीपी बहुत प्रेशर से जा रहा है, ये मतलब अगर वॉल्स पे जाएगा, और सपोज इमेजिन दिस थिक ब्लड इज मूविंग टू हार्ट, तो हार्ट पे अगर ये वेसल पे छोटी सी वेसल से निकल रहा है तो इट विल क्रिएट अ प्रेशर, जनरली डायबिटिक पेशेंट्स दे हैव हाई बीपी Yes, ma'am. ब्लड, और आपको बता दिए क्यों हाई बीपी, इसलिए क्योंकि ब्लड इज मूविंग विद प्रेशर ऑन, बाय क्रिएटिंग प्रेशर ऑन द वॉल्स। इसी के अपोजिट समझते हैं कि अगर ब्लड में पानी ज्यादा होगा, मतलब शुगर चीनी ज्यादा हुई तो ब्लड बहुत थिक है, अगर पानी ज्यादा है, ब्लड की थिकनेस बहुत कम है, बहुत थिन है, थिन होगा तो भी बहुत तेजी से जाएगा, एंड वेरी इट विल बी वेरी लाइट इन कलर, ये डार्क कलर इतना होता है कि समटाइम्स इट बिकम्स ब्लैक, ब्राउनिश ब्लैक, इतना थिक हो जाता है जैसे चाशनी हो जाती है ना, वैक्स बन जाती है, बताया था आपको कि आप ज्यादा पानी में चीनी घोलते रहोगे अल्टीमेटली इट विल बी कन्वर्टेड इनटू वैक्स। जो फीमेल्स वैक्सिंग करवाती हैं दैट इज फॉर्म्ड आफ्टर मिक्सिंग शुगर विद वाटर ओनली, इतना थिक हो जाएगा। और अगर आप पानी बहुत थिन कर रहे हो, ब्लड में नमक भी नहीं है, चीनी भी नहीं है, इट विल अगेन मूव विद, Ma'am, इट विल बी so वेरी फास्ट। BP is the pressure exerted by the blood on the walls. yes it is the pressure that is created by the blood on the walls. तो Okay. ब्लड प्रेशर जो है जनरली वी काउंट when we all know that heart has upper two chambers and lower two chambers. Upper two chambers are called as auricles, lower two chambers are called as ventricles. Well, तो upper two auricles, lower two ventricles. तो जब ये ब्लड auricles में जाता है, the blood inside the when there is अच्छा, जब हमारा हार्ट कंट्रैक्ट, you know what is pumping of हार्ट में एक तरफ कंट्रैक्ट करता है, दूसरी तरफ क्या करेगा, रिलैक्स, दिस कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन इज नोन एज पंपिंग। तो जब हमारा हार्ट कंट्रैक्ट करेगा तो एक प्रेशर क्रिएट होता है, जब हमारा हार्ट रिलैक्स करता है तो एक प्रेशर होता है। कंट्रैक्शन को बोलते हैं सिस्टोल, रिलैक्सेशन को बोलते हैं डायस्टोल। When heart contracts, then it is systole, then pressure is called as systolic pressure. When heart relax, then it is called as diastole or relaxation pressure. तो आपने देखा होगा जब हमने किसी का बीपी चेक करना है, ब्लड प्रेशर चेक करना है, तो या तो आप नेक के रीजन पे देखते हो अपना, और हाथ पे आप लोग थंब रखते हो, muscles. हाँ हाँ, जो रिस्ट के अंदर है वो थंब रखते हो और वो चेक करते हो, थंपिंग साउंड, लब डब बोलते हैं, धक धक नहीं है, इट इज लब डब। जो जोर से बीप आती है दैट इज सिस्टोल, जब कंट्रैक्ट करता है हार्ट, और जब रिलैक्स होता है तो साउंड थोड़ी लो आती है, दिस इज व्हाट इज पंपिंग। और दोनों प्रेशर का नाम आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है, एक तरफ जब कंट्रैक्ट करेगा सिस्टोल, जब रिलैक्स करेगा डायस्टोल। तो एक सिस्टोलिक प्रेशर है, कंट्रैक्ट किया
तो सिस्टोल, रिलैक्स किया तो डायस्टोल। तो सिस्टोलिक प्रेशर एंड डायस्टोलिक प्रेशर। जब हमारा हार्ट कंट्रैक्ट करता है तो उसकी वैल्यू आती है 120 mm ऑफ Hg। और जब हमारा हार्ट रिलैक्स करता है उसकी वैल्यू आती है 80 mm ऑफ Hg। नाउ व्हाट इज mm? mm इज मिलीमीटर, Hg इज मर्करी। जब हम प्रेशर काउंट करते हैं तो मर्करी थर्मोमीटर्स या बैरोमीटर्स को यूज करते हैं। मर्करी डाली होती है उनके अंदर, और मर्करी का प्रेशर, मर्करी ट्यूब में ना मर्करी डाली हुई है, एंड मर्करी इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो जब हमारा हार्ट कंट्रैक्ट करता है तो उसकी वैल्यू आती है 120, मर्करी यहाँ रुक जाती है। और जब हमारा हार्ट रिलैक्स करता है तो मर्करी रुक जाती है 80 पे। दिस इज योर, यस, दिस इज योर सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर। और इसको मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम आप लोगों के लिए थोड़ा सा टफ है, स्फिग्मो, सॉरी, sphygmomanometer. This is the instrument, sphygmomanometer. Sphygmomanometer. BP meter भी कई बोलते हैं। तो this is an instrument which is used to measure your BP, sphygmomanometer. और अगर हाँ, इसका नाम थोड़ा सा ज्यादा बड़ा है, बट ये आपकी येलो इनबॉक्स में दिया भी हुआ है जहाँ वो हाथ बना हुआ है। बहुत सुंदर डायग्राम है। इट इज गिवन इन योर एंड। कैन यू टेल मी द पेज नंबर? 107. Okay, please open your book for 107. तो उसमें आपके डायग्राम भी बना हुआ है, क्लियर फ्रॉम दैट डायग्राम ऑल्सो। लेकिन अगर आप लोगों को ये समझ आ गया, ब्लड प्रेशर, इट हैज टू पार्ट्स, कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। कंट्रैक्शन इज सिस्टोल, रिलैक्सेशन इज डायस्टोल, एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज स्फिग्मोमैनोमीटर। अगर बीपी हाई है तो कौन सी डिजीज होगी? हाइपरटेंशन। वेरी गुड। और हाइपरटेंशन हो रही है तो क्या होना चाहिए उसका इफेक्ट? एनीवन? मैंने बताया बहुत ब्लड थिक है और वो वॉल्स पे इतनी तेजी से, मतलब इतनी जोर से, It results in increased resistance to blood flow. yes, it increases resistance to blood flow. बट अगर ये हार्ट पे पहुंचेगा तो इट विल लीड टू द रप्चरिंग ऑफ हार्ट वेसल्स, और अंदर ही ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी, इंटरनल ब्लीडिंग, ये वेसल्स फट जाएंगे। तो हाइपरटेंशन से कहते हैं हेमरेज हो जाती है, ब्रेन की नसें फट जाती हैं। द रीजन इज दिस, blood pressure is very high, it is creating pressure on the walls which leads to the rupturing of walls. I hope this part is, तो मैम 2 hours में डेथ हो जाती है। नहीं, कुछ सेकंड्स Brain- में भी हो जाती है। brain. ब्रेन हेमरेज में तो कई बार ऐसे ही सीधा गिर जाते हैं। अच्छा, अब लिखो इसमें ब्लड प्रेशर के बारे में लिखो। It is the force that blood exerts against the wall of vessel. It is the force It is the force that blood exerts It is the force that blood exerts against the wall of vessel. It is the force that blood exerts against the wall of vessel. नेक्स्ट पॉइंट में लिखना, ब्लड प्रेशर के बारे में आप लिख चुके हो। किस में ज्यादा होगा, आर्टरीज में ज्यादा होगा प्रेशर की वेन्स में? Veins में। artery.
आर्टरीज बेटे, नहीं नहीं नहीं, Arteries. अरे क्या बोल रहे हो आप लोग सभी, सोचो आर्टरीज और वेन्स, आंसर इज Artery. Arteries. आर्टरीज, आर्टरीज, यस मैम यस। आर्टरीज में क्यों मैम? बेटे वेन्स में तो कुछ है ही नहीं, वेन्स तो खाली हो चुके हैं, ऑक्सीजनेटेड नहीं, ऑक्सीजन नहीं है, फूड नहीं है, तो वो तो सिर्फ CO2 कैरी कर रही है, वेस्ट कैरी कर रही है, तो प्रेशर तो ज्यादा उसमें होगा जिसमें खाना लोड होगा। मैम वेन्स में ब्लड नहीं होता। अरे वेन्स का ब्लड लोडेड नहीं होगा ना, फूड नहीं होगा उसमें तो सिर्फ वेस्ट है और CO2 है, दैट्स इट। इसमें सॉल्ट्स भी हैं, वाटर भी है, खाना है ना इसके अंदर लोडेड, तो प्रेशर ज्यादा हो। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखो। मैम पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट। तो इसमें आप लिखो द नेक्स्ट पॉइंट पे लिखो, नेक्स्ट पॉइंट है ये। यस यस, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, द प्रेशर ऑफ ब्लड inside artery during contraction, Ma'am, the pressure of blood the pressure of blood inside artery during contraction is called as systolic pressure. इसको Hmm? मैम इज कॉल्ड एज Is called as systolic pressure. Systole की spelling लिखियो मैं, systolic pressure। और दूसरा प्रेशर लिखो, नेक्स्ट पॉइंट, the pressure in the artery during relaxation is called as diastolic pressure. The pressure in the artery during relaxation is called as diastolic pressure. मैम ड्यूरिंग During relaxation, the pressure in the artery during relaxation is called as diastolic pressure. Next point, it is measured by instrument called, it is measured by instrument called, लिखा हुआ है स्क्रीन पे, स्पिग्मोमैनोमीटर। किसको लर्न हो गया ये, कौन देख के रीड कर सकता है? यस एनीवन? Yes, ma'am. ओके बोलो, ट्राई करो। ओके यश, वर्जोत, ओके आई लास्ट एवरीवन, एवरी, हाँ बोलो बोलो। Sphygmomanometer. स्पिग्मोमैनोमीटर, इसको पार्ट्स में डिवाइड करोगे ना अपने आप हो जाएगी। यश बोलो। Sphygmomanometer. यस वर्जोत। स्पिग्मोमैनोमीटर। स्पिग्मोमैनोमीटर। आदिल। Sphygmomanometer. Yes, sphygmomanometer. Yes, yes. Bhavit. Yes. Yes. Harika की टर्न आ गई। जानवी। Sphygmomanometer. चाहत। Sphygmomanometer. हाँ, sphygmomanometer. Okay. Kaya, yes. Sphygmomanometer. Yes, very good. Kamal. Sphygmomanometer. Yes, sphygmomanometer. Rishabh, your turn. Sphygmomanometer. Yes, sphygmomanometer. Very good. Soumya. Sphygmomanometer. Sphygmomanometer. Rohan. Sphygmomanometer. Yes, sphygmomanometer. Ishriya. Sphygmomanometer.
Yes. Last Sia. Ma'am, sphygmomanometer. Okay. Okay. Excuse me, ma'am. Yes. Yes. Ma'am, so a sudden rise in blood pressure during the day could just be because you ate too much. Because you. Sorry. Age. Because of overeating. Overeating. नहीं मुझे मैंने अभी बताया डायबिटीज is the major cause of hypertension. आपने क्या For a पूछा person है? who doesn't have diabetes. हाँ तो और रिलेटेड होते हैं यस डाइट की भी प्रॉब्लम है स्ट्रेस का है देयर आर मेनी फैक्टर्स रिलेटेड व्हिच लीड्स टू दिस काइंड ऑफ डिजीज स्ट्रेस की वजह से जो एंजाइम्स और हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं दे अफेक्टेड. यस ओके. hypertension can occur at any age even in your case also at your age also yes कई बच्चे ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं पढ़ाई का हो गया खेल का हो गया किसी भी चीज का इनफैक्ट यू मस्ट हैव सीन दैट दीज डेज द गेम्स आर सो मच प्रिवलेंट दैट ऑनलाइन गेमिंग जो है बच्चे करते हैं एंड दे इन्वॉल्व देमसेल्फ इनटू दीज गेम्स सो मच दैट दे Like PUBG, ma'am. हाँ जैसे पबजी में कोई भी गेम and वो इतना involve हो जाते हैं I've seen many children who are having sudden heart attack at your age because of this stress वो stress नहीं लिया एक मतलब इतनी छोटी छोटी चीजों का वो it is a factor बच्चा बिल्कुल हेल्दी था कुछ प्रॉब्लम नहीं थी डाइट अच्छी ली खाना सब कुछ था एकदम सडन स्ट्रेस ले लिया ट्रॉमा ले लिया जिससे उसका जो है वेसल्स रप्चर हो गए और हार्ट पे एकदम इफेक्ट आ गया That is why it is ours to the PUBG. I think it is banned now. Yes. Ma'am, This No, game ma'am, उसका it is नया version coming आ in गया India India में. now. again in India. It It's is coming. again. Yes, ma'am. Okay. हाँ मुझे ये ऐसी game से try to Ma'am, avoid. I guess Indian version is coming now. Okay, but I think you all should avoid this because I told you you are a science Royal student Fed. now. क्योंकि ज़्यादा एकदम anxiety हो जाती है and it leads to hypertension. So ये अब आपको पता चल गया sphygmomanometer अब लिखो its value is the normal systolic pressure is 120 mm of Hg and diastolic pressure is 80 mm of Hg. The normal systolic pressure is 120 mm of Hg and diastolic pressure is 80 mm of Hg. Okay, ma'am. Okay. Values लिख ली 120 mm of Hg or 80 mm of Yes, Hg. ma'am. Yeah. Okay. Now coming to next topic, write down the heading transportation in plants. पहले फिर से आप लोग समझोगे, then I'll make you write down transportation in plants. Plants में generally there is a process called as diffusion. You know what is diffusion? Diffusion is yes. Who will tell me what is diffusion? Movement of Diffusion in different organs. Diffusion is Different from high parts. from higher concentration to low pressure to concentration. lower pressure. yes, it is the movement of molecules from high concentration to low concentration. The gases in plants they diffuse from high concentration to low concentration from stomata. You know what is stomata? Stomata are present on the leaves, generally on the lower surface. तो अगर आप लीफ में बात कर रहे हो, I'm making a plant. तो प्लांट से diffusion होती है. Diffusion, you know what is diffusion? Movement of molecules from high concentration to low concentration. Now
Stomata, they show diffusion of gases. Diffusion means exchange of gases. तो अगर आप लोगों को पता है इस बारे में कि there is exchange of gases, via the process diffusion from stomata. So transportation in plants occurs by this diffusion process from stomata. और bark में भी एक special cells होते हैं, पढ़ा था हमने, yes, lenticels पढ़ाया मैंने आपको. Yes, ma'am. Yes, sir. हाँ हाँ, मैंने बताया था आपको there are big holes in the stem में जो part होता है bark, you know, dead part of the stem, it is dead. तो bark कई बार ये rupture हुई होती है, it has big holes and these holes are called as lenticels. The lenticels helps in exchange of gases. The lenticels and stomata, they help in exchange of gases. Okay, तो ये exchange हो गया. Stomata के दो functions थे, stomata and lenticels, they help in exchange of gases by diffusion process. इसमें कौन सी गैस निकलती है बाहर? O2, and they take in, O2, O2, CO2, CO2. CO2. they absorb CO2 and releases O2. अब अगर आप लोगों को याद हो transportation in plants में xylem conducts water And and no minerals, whereas phloem, अब इसको याद करने का तरीका है, for phloem, for food, phloem conducts food, xylem conducts water and minerals. तो ये हम transportation पढ़ रहे हैं. तो अगर आप पानी देते हो पौधों को तो आपने देखा है the roots, they absorb water. The water goes from xylem via roots. The roots, absorb the water and the water is then transported via xylem to the leaves. और leaves से फिर वो बाहर जाता है. इस process को क्या बोलते हैं जब पानी बाहर निकलता है? That process is called as? Transpiration. Very good. Transpiration. Yes. So transpiration is loss of water in the form of vapors. तो transpiration, loss of water in the form of vapors. तो ये पानी आया कहाँ से था? रूट से. ट्रांसपोर्ट कहाँ से हुआ? xylem से. And it reaches to the leaves and moves out of the leaves. This is known as transpiration. और दूसरा मेथड phloem करेगा. Phloem prepares food in the leaves. Then the food is prepared in the leaves via chlorophyll or chloroplast. This food is then transported to other parts of the stem, चाहे वो lower part है चाहे upper part है, via phloem. तो आपने ध्यान दिया तो water हमेशा root से upper part में जाएगा, the direction is upward, whereas in case of food the direction is both downward and upward. तो जो xylem है वो conduct करता है हमेशा upward direction में. It is unidirectional. It is unidirectional. Uni means single direction में. Whereas phloem conducts food both ways, so it is bidirectional. How many of you are clear now? Raise your hand. Phloem and xylem. Okay, Yash, Parjot, Shreya, Harika, Soumya. Okay, very good. Very good, Rishabh. Yes, Adil, Bhavit, Chaha, Janvi, Kamal. I'm waiting, bete. Yes, everyone. फ्लोएम वापस समझा दो. Ma'am, it's Okay. 60% only. Okay. Okay. No worries. अच्छा, मैंने आपको बोला कि ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स में एक तो हो रहा है स्टोमेटा हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड ट्रांसपिरेशन. गैसेस एक्सचेंज हुई थी CO2 and O2 एंड ट्रांसपिरेशन. ठीक है. और अगर आप देखते हो इसमें मेजर चीजें जो ट्रांसपोर्ट होती हैं वो क्या है? जाइलम में वाटर एंड मिनरल्स और फ्लोएम में होता है फूड. तो पानी हमेशा रूट से जाता है अपर पार्ट्स ऑफ स्टेम वाया जाइलम, और जो फूड है वो फ्लोएम कंडक्ट करता है ऑन बोथ द साइड्स, दैट इज अप साइड एंड डाउन साइड. तो ये मैंने आपको एरोहेड जो बनाए थे
वाटर के लिए आई यूज्ड ब्लू कलर. तो ब्लू कलर हमेशा रूट से अपर पार्ट्स ऑफ स्टेम में जाएगा और स्टोमेटा से बाहर चला जाता है. Whereas in case of phloem, food is prepared in the leaves and is transported to both upward and downward part of the stem. Clear, everyone? Yes, ma'am. Ma'am. Okay. So please write down transportation in plants. Plants possess stomata and lenticels. Plant possess, लिखा हुआ है screen पे, stomata and lenticels. I have written both the terms. Lenticels and stomata. Plants have stomata and lenticels. For diffusion of gases. For diffusion of gases. Ma'am, what to write out the plants possess stomata Stomata. and Lenticels for diffusion of gases. CO2 is used for photosynthesis. CO2 absorb करते हैं. CO2 is used for photosynthesis and oxygen is released as byproduct. Yes, ma'am. CO2 is used for photosynthesis and oxygen is released as byproduct. Next point में लिखना. ma'am, and O2 is released as byproduct. Yes, O2 is released as byproduct. O2 release कर देता है, उनके लिए waste है, हमारे लिए useful है. Next आप लिख रहे हो. Xylem conducts water and minerals. Xylem conducts water and minerals from soil to aerial parts. Xylem conducts water and minerals from soil to aerial parts. Minerals. Xylem conducts water and minerals from soil to aerial parts. AERIAL. Next line में लिखो phloem conducts food. Phloem conducts food. Phloem conducts food from leaves to. Phloem conducts food from leaves to. All the parts of the plant. कितने बच्चों को क्लियर हो चुका है जो लिखा है आपने? बिल्कुल सिंपल वर्डिंग्स में लिखवाया है जो समझाया है. ओके जानवी, All the भव्य, parts हरिका. of. All the parts of the plant. Okay, Adil. Okay, Shreya. Okay, got it. So everyone is clear. Yes, Rishabh. Rishabh, clear बेटे? Yes, ma'am. Okay, nice. आज थोड़ा सा टफ टॉपिक है तो डोंट वरी, नेक्स्ट क्लास में बहुत इजी है. एक्सक्रीटरी सिस्टम. Write down the next heading, transpiration. Will tell me the definition for transpiration. Loss of water due to evaporation through leaves. Very good. Loss of water in the form of vapor.
Ma'am, I got disconnected again. What to write after the third point? बच्चे phloem carries food from Ma'am, the actually, I have written this point. okay फिर अब लिखो transpiration. Transpiration is loss of water in the form of vapors. Loss of water in the form of vapors from the exposed part of plant. From the exposed part of plant. और आप हैरान हो जाओगे जितना पानी हम देते हैं ना पौधों को. Suppose you are giving one bucket, full bucket of water. It is around 10 liters. तो उसमें से सिर्फ 2 mugs यूज करेगा पौधा, बाकी सारा वेस्ट हो जाता है in the process of transpiration. Transpiration अच्छा है कि बुरा है? Yes, tell me. Whether transpiration is yes, it is a necessity. Whether it is a Good, boon or a bane, yes, it is It good. is necessary. Yes, Ma'am, yes. it is necessary. Necessary, but it is a kind of a evil. So that sometimes it is called as necessary. अभी आपने बोला it is very useful. So it is called as necessary evil. Abhishap है ये. It is necessary. It is required by the plant, but it is an evil. Evil because there is lots and lots of water that is wasted. Excess of water is removed. But why it is necessary? Because it helps in absorption of minerals. क्योंकि आपने अभी पढ़ा xylem के साथ पानी में खुले हुए minerals आते हैं, तो it is required for absorption of minerals. And also it helps in lowering the temperature. अगर बाहर टेम्परेचर 50 डिग्रीज है, इतनी गर्मी है कि आप भी नहीं खड़े हो सकते और पौधे वहां पे खड़े हैं. वो क्यों? क्योंकि ट्रांसपिरेशन हेल्प्स इन कूलिंग देम. 15 डिग्री टेम्परेचर लो हो जाता है, 35 है, विच इज बेयरेबल. तो लिखो इंपॉर्टेंस में, लिखो हेडिंग, लिखो इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन. इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन. कहते हैं क्या फायदा है इसका? इंपॉर्टेंस में लिखो. सबसे पहले तो खाना जाता है, अपवर्ड मूवमेंट ऑफ सेल, वाटर और मिनरल्स. तो इसमें लिखोगे आप, इसको लिखते हैं एसेंट ऑफ. एसेंट मतलब ऊपर जाना, किसका? सैप का. सैप मतलब वाटर एंड मिनरल्स. सबसे पहला है एसेंट ऑफ सैप. दैट इज मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स थ्रू xylem. Movement of water and minerals, upward movement of water and minerals through xylem. Removal of upward movement of water and minerals through xylem. दूसरा लिख लिए point, removal of excess of water. Please write down removal of Ma'am, excess salt, of ma'am. salt. क्या बेटे? Ma'am, absorption of salt. Absorption of salts. Yes, ये बेटे मैंने points लिखे. Removal of excess of water. How? Salts बेटे पानी में जो घुले हुए नमक जाएगा ना, मिनरल सॉल्ट सारे जाएंगे. पानी Ma'am, जा रहा है ना why they absorb salt, ma'am? मुझे पानी जा रहा है ना, तो पानी जब जाएगा तो सॉल्ट्स उसके साथ एब्जॉर्ब होंगे फ्रॉम द सॉइल. एब्जॉर्प्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉल्ट्स. मैम वैसे सॉल्ट की there कोई is a जरूरत use of होती है उनको salt. प्लांट्स में? हाँ, प्लांट्स की जरूरत होती है. जैसे प्लांट्स में सॉल्ट, सोडियम है, कैल्शियम है, पोटेशियम है. दीज आर ऑल सॉल्ट्स. ये आयंस है ना, सॉल्ट के फॉर्म में ही जाते हैं. Why they need? Ma'am, why they use? जो प्लांट्स में सारे मिनरल्स है ना, मिनरल्स, आयन, सॉल्ट्स, उसी से तो बॉडी बनी है. हम खाते ही इनको ये है कि वी नीड दिस मिनरल्स, दिस आयंस इन आवर बॉडी.
खाते ही पौधों को इसलिए कि इसमें आयंस और सॉल्ट्स होते हैं. Okay. Clear everyone? बट मैम अब्जॉर्प्शन तो रूट्स कर ही लेंगी, ट्रांसपिरेशन हो या ना हो. नहीं, पानी जाएगा ही नहीं तो वो वहीं रह जाएगा ना. अगर ये पानी मूव ही नहीं होगा तो ये पानी जो ऊपर जा रहा है, अगर ये पानी ऊपर ही नहीं गया, लॉस ही नहीं हुआ, तो नीचे वाला पानी ऐसे कैसे रन करेगा. नहीं तो ये तो ब्लॉक हो गया. सॉल्ट्स भी ब्लॉक हो जाएंगे. सॉल्ट्स तभी रन होंगे ना जब ये पानी ऊपर जा रहा है बार बार. और जहां जहां जरूरत होगी सॉल्ट की वहां पे डिफ्यूजन हो जाएगी. ओके. ओके. मैम Um, फूड मेकिंग के लिए भी सॉल्ट यूज यस. फूड के लिए तो फोटोसिंथेसिस है, उसमें CO2, वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल था. तो ट्रांसपोर्टेशन में चाहिए कि अब आप पढ़ रहे हो ट्रांसपोर्टेशन. इसमें एक और स्पेशल टर्म आती है, वो हम नेक्स्ट क्लास में लिखेंगे, लेकिन अभी सिर्फ समझ लो ट्रांसलोकेशन. ट्रांसलोकेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें खाना बनता है लीव्स में. From leaves, it is transported to different parts of the stem as well as to other leaves via phloem. This process is known as translocation. Transport of food from leaves to other parts of the plant via phloem. This is known as translocation. कितने बच्चों को ये समझ आ गया? ट्रांसलोकेशन हमने टर्म दी है. It is a term where there is transport of food from leaves to other parts of plant and it occurs in the vascular tissue known as phloem. Clear? We'll discuss this topic in detail in the next class. Okay. Any question from the topics that we have done? Anyone? और आज हमने जो टॉपिक्स किए हैं इजी थे. पहले हमने किया था लिम्फ में लिम्फेटिक सिस्टम. लिम्फेटिक सिस्टम आपको बता दिया था पूरा, ये lymph vessels, lymph glands Yes, and ma'am. lymph. No, clear. Yes, functions of lymph. फिर उसके बाद हमने पढ़ा ब्लड प्रेशर. इंस्ट्रूमेंट इज स्फिग्मोमैनोमीटर. फिर हमने आज जो टॉपिक पढ़ा है दैट इज ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स. ट्रांसपोर्टेशन में जाइलम और फ्लोएम के बारे में पढ़ा है. और लास्ट आपने पढ़ा है इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन. ट्रांसपिरेशन नेक्स्ट टॉपिक, और अभी हम ट्रांसलोकेशन करेंगे नेक्स्ट क्लास में. ओके, एंड देन वी विल स्टार्ट विद एक्सक्रीशन. और इसकी एक्टिविटीज हैं वो आल्सो आई विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास. बहुत सारी एक्टिविटीज जो बीच में रह गई हैं, तो वी विल डिस्कस दोस एक्टिविटीज आल्सो. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Okay, bache, now if you have any doubts, stay back. Otherwise, you can leave and stay safe. Stay at home. Take care, everyone. Bye bye for now. Okay. Safe. Bye.